अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 5 केमिकल रिएक्शन के एक्सरसाइज के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आंसर लिखें आप लोग। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: evolution of a gas, formation of a precipitate, change in color, change in temperature, change in state. Second question है, define chemical reaction and its types. आंसर लिखिए, the process of formation or breaking of a chemical compound is a chemical reaction. Types of chemical reaction की heading दे। Chemical reaction can be categorized into 4 basic types: addition or synthesis reaction, decomposition reactions, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द वन एग्जांपल ईच। आंसर लिखें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग दे, एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। When 2 or more substances react together and form one product is called addition reaction. For example, S plus O2 arrow SO2. Sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide. Second heading they up at decomposition reactions. In this type of chemical reactions, only one reactant which break up and form 2 or more product. For example, CaCO3 arrow CaO plus CO2. कैल्शियम कार्बोनेट एरो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हेडिंग दे आप सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जिंक प्लस 2HCl एरो ZnCl2 plus H2. When zinc is an element and HCl is a compound, zinc is more reactive than hydrogen. Therefore, it displaces hydrogen from its compound and forms zinc chloride. लास्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 compounds. HCl plus NaOH arrow HCl NaCl plus H2O. Here HCl and NaOH are reactant. They split into ions and produce sodium chloride, NaCl and water. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, गिव 2 रीजन। आंसर लिखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। द हीट रिलीज ड्यूरिंग respiration not only keep us warm but also provides energy for our normal functions. The heat released by the burning of fuels is also used for cooking food, running vehicle and operating function. Question number 5 है हमारे पास, what is balanced chemical equation? Why chemical equation is need to be balanced? आंसर में आप हेडिंग दे, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बाद लिखें, अ केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड formula. In a chemical equation, reactant are written on the left hand sides and product on the right hand side of arrow. Arrowhead show the direction of equation. For example, AgNO3 plus NaCl जो है यहाँ पे reactant है, arrow AgCl plus NO3 क्या है, ये हमारे NaNO3 हमारे पास क्या है, ये product है। Why chemical reaction equation need to be balanced? हेडिंग दे आप इसकी। इसके बाद लिखें, according to law of conservation of mass, matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction. However, a chemical change may occur in the physical state of the reactant due to the rearrangement of atom. Therefore, the number of atoms of each element must be equal on both sides of chemical equation. 2H2 plus O2 give 2H2O. इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन विद 2 एग्जाम्पल। आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग दे, स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टेप 1, write unbalanced chemical equation. The symbol and formula of reactant and product must be correct.
स्टेप 2 लिखें, कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। स्टेप 3, if the number of atoms are different on both sides, write the required number as coefficient of symbol or formula. Step 4, work with one element at a time. Step 5, always start with a relatively small number. Step 6, start with atoms that appear only once in the reactant and products. Usually leave the diatomic element like nitrogen, hydrogen and oxygen etc. until last. एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 + O2 एरो CO2 + H2O। ये हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमने अब बैलेंस करना है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द इक्वेशन दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में हमारे पास है कार्बन = 1, हाइड्रोजन = 4 एंड ऑक्सीजन = 2। प्रोडक्ट में कार्बन = 1 बैलेंस, हाइड्रोजन = 2 अनबैलेंस एंड ऑक्सीजन = 3 अनबैलेंस। We have 4 hydrogen in CH4 at the left side and only 2 hydrogen in water on the right side. So we need to double the coefficient of water to balance the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में वाटर के साथ 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बोथ साइड पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो केमिकल इक्वेशन ये हो जाएगी CH4 + O2 एरो CO2 + 2H2O। अब नंबर ऑफ कार्बन जो हमारे पास बोथ साइड पे बैलेंस है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम एज ऑन बोथ साइड। चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन इज 2 एंड ऑन द राइट साइड इट इज 4। सो वी नीड टू ऐड 2 एज अ कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन एट लेफ्ट साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड। CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O। हमारे पास जो इनिशियल इक्वेशन थी CH4 + O2 एरो CO2 + H2O हमारे पास बन गई CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O। अब इसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन पे इक्वल है। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2। स्टार्ट बैलेंसिंग विद आयरन एटम्स ऑन बोथ साइड। रिएक्टेंट में आयरन हमारे पास 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आयरन को बैलेंस करेंगे। सो वी हैव टू ऐड कोएफिशिएंट 3 विद आयरन एट द रिएक्टेंट साइड टू बैलेंस द आयरन एटम ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम आयरन के साथ 3 लगाएंगे तो हमारे पास बोथ साइड पे आयरन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। 3Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2। नाउ काउंट द ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1 है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एट द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एट द राइट साइड is equal to 4. So we have to add coefficient 4 at the reactant side with H2O to balance oxygen atom on both sides. 3Fe + 4H2O arrow Fe3O4 + H2। Finally we have to balance hydrogen। अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। सो वी विल ऐड कोएफिशिएंट 4 विद हाइड्रोजन एट प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड। 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2 हमारे पास हो जाएगी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन 2 है हमारे पास। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। आंसर में पहले आप हेडिंग दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This law was presented by a French chemist Lavoisier in 1785. According to this law, mass can neither be created nor destroyed during chemical reaction. During chemical reaction, total mass of reactant is equal to total mass of product. Mass of reactant is equal to mass of product. For example, when a piece of iron is left in moist air, its surface gradually turns brown. The iron gets rusted and gain mass. 4Fe + 3O2 iron plus oxygen gave iron oxide to Fe2O3. The increase in mass is the mass of oxygen. Similarly, when coal is burned, it leaves behind ash. The ash is lighter than coal, but the mass of coal will be equal to that of ash and the liberated carbon dioxide. Equation है हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एश।
क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, व्हेन अ पाइल ऑफ वुड इज बर्न द एश इज लेफ्ट बिहाइंड इज लेस एज कम्पेयर टू वुड, हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। आंसर लिखें, व्हेन अ पाइल ऑफ वुड इज बर्न it leave behind ash, the ash is lighter than pile of wood but the mass of pile of wood will be equal to that of ash and liberated carbon dioxide. Example, carbon plus oxygen arrow CO2 plus ash. लॉन्ग क्वेश्चन 3 हमारे पास है, डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। आंसर में पहले आप हेडिंग दे हीट ऑफ रिएक्शन। द हीट ऑफ रिएक्शन, द हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद कॉलम बनाएं, कॉलम ए में हेडिंग दे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉलम बी में हेडिंग दे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के कॉलम में लिखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कॉलम में लिखें एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन की कॉलम में लिखें एंडो मीन इनसाइड एंड थर्म मीन हीट। इसके बाद लिखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इनटू सराउंडिंग एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग इंक्रीज। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन CH4 plus 2O2 arrow CO2 plus 2H2O plus heat। एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिखें, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ड्रॉप। दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट एडिशन ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल, द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर हीट। 2KCl plus heat arrow 2KCl plus 3O2। सेकेंड एग्जाम्पल है CaCO3 plus heat, दरमियान में आप लोग एरो लगाएं, इसके बाद लिखें CaO plus CO2। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट 5 एक्सरसाइज के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए। स्टूडेंट्स आप सब अपनी नोटबुक जो है वो अपने स्कूल चेकिंग के लिए सबमिट करवा दें। शुक्रिया।